Hello students, today topic is web client. What is a web clients? Okay, web client is also known as thin client. Thin client. Okay, web client, that means client computer. Client computer, that means where you send the request to the web server for accessing the web page and website. These computer known as client computer या web client computer. For example, this is your computer and your computer connect to the internet. Okay, so it is a web client computer. When your computer connect to internet, then it is known as web client computer. And this is a server. Client computer give the request to the web server computer and to the web server computer. ये रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास? सर्वर कंप्यूटर या वेब सर्वर कंप्यूटर. एंड वेब सर्वर कंप्यूटर एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट एंड गिव द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट. ओके, दैट इज अ who give the request to the web server, that is a web client computer. Who give the response according to the request, that is a web server computer. And that request and response are sending through the internet. Okay, that is a web client computer. Web client computer is known as application program. Okay, that is installed on the client side computer that is responsible for communicating with a web server using hypertext transfer protocol. इस hypertext transfer का प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए ये रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जाती है और सर्वर जो है रिस्पॉन्स भेजता है वेब क्लाइंट कंप्यूटर को. किसका यूज़ करके? इंटरनेट का यूज़ करके. और इंटरनेट में क्या कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जैसे आपने अगर रिक्वेस्ट करी www.google.com, तो ये आपकी रिक्वेस्ट है कि गूगल का पेज ओपन कर दो, गूगल की साइट ओपन कर दो. ठीक है, यू वांट टू एक्सेस द गूगल साइट. देन व्हेन यू enter the search key, then automatically write here HTTP. लिखता है ना HTTP, that is a hypertext transfer protocol. ये hypertext transfer protocol क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाएगा और सर्वर से रिस्पॉन्स क्लाइंट तक पहुंचाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार बता चुके हैं. वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन software program that is installed on the web client computer. It is access the website and web pages. It is used for accessing the website and web pages. Web pages cannot be accessed without web browser. Okay, such as Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Okay, clear है web browser? वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉलेटेड ऑन द वेब क्लाइंट कंप्यूटर. ओके, इट इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग द वेब पेजेस एंड वेबसाइट. विदाउट वेब ब्राउज़र यू कैन नॉट एक्सेस द वेब पेजेस एंड वेबसाइट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा. The first web browser was invented in 1990 by Sir Tim Berners-Lee. Okay, the browser developed by him was initially called www, that is a World Wide Web, and after that is renamed NIAX. Okay,
सर टिम बर्नर ली ने 1990 में एक वेब ब्राउज़र को इन्वेंट किया था जिसका नाम क्या था, www, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर बाद में उसको रीनेम्ड कर दिया गया, क्या नाम रख दिया गया, नियक्स। ओके, फिर आता है आपका व्हाट इज अ वेब पेज। वेब पेज क्या है, व्हाट इज अ वेब पेज। Web page. Web page is a document that contain information travel over the web. That is a web page. You can say that it contain different types of information such as audio, video, images, hyperlinking, etc. Okay. For example, if you that is a normal page. That is a normal page. Okay, when you connect to the internet, okay, then it becomes a web page. Okay, and it contains a text, video, audio, images, hyperlinking, all these things. So and it connect to the internet, then it becomes a web page. Okay, that means connect to the internet, that means it travels over the web, then it is known as a web page. Okay, web page is a part of notebook. In the same way, web page is a part of a website. Web page किसका साइट, देखिए वेबसाइट एंड वेब पेज। when you open a Google website, there is not only one web page, there is a number of web page, and number of web page are connected to each other, then is known as website. You can say that website is a collection of web pages. Okay, and in a web pages contain a text, audio, video, hyperlinking, etc. These information are collected on the web pages, and web pages travel over the web, then it is known as web page. If you not travel over the web, then it is a page. When it travel over the web, then it become a web page. Web pages are usually written in a web language such as HTML and accessed via web browser. Okay. Types of web pages. There are two types of web pages: static web pages, and dynamic web page. Static web page, that means static web page contain static content. That means it does not change. The static web page contain information that can only be viewed and cannot be changed. For example, when you open a CBSE sample paper या CBSE website, and there is a many numbers of CBSE sample papers of different subjects. To view a sample paper, you need to click on the hyperlink and the paper will be displayed. You cannot change the sample paper. That is a static web page. Okay. देखिए static web page जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक CBSE की वेबसाइट ओपन करी। CBSE की वेबसाइट में आपके कई वेब पेजेस हैं, ठीक है। अब आपको अगर अपने लास्ट ईयर के सैम्पल्स पेपर को डाउनलोड करना है, ठीक, या फिर आपको सैम्पल्स पेपर्स डाउनलोड करना है हर डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आप
का उस पर लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। आप सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ऐसा वेब पेज जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्टैटिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज क्या है? डायनेमिक वेब पेज आपका अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, यू कैन चेंज इट। दैट मीन्स dynamic web pages display different content each time when they are viewed, and if you want to change then you change according to your need. Okay, for example, reservation sites, railway reservation sites, ठीक, seat availability, this time seat availability is 100 and after 5 minutes seat availability is 4. So content will be changed after 5 minutes. That is a dynamic web page. शॉपिंग की साइट ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ठीक है, अभी आपने ओपन किया, ऑफ़र है, 10 मिनट बाद ऑफ़र नहीं है, तो ये क्या हो गया? टाइम टू टाइम आपका डेटा जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेब पेज जिसमें अकॉर्डिंग टू टाइम आपका डेटा चेंज होता रहे, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका डायनेमिक वेब पेज। और जिसमें डेटा चेंज नहीं हो सकता है वो कहलाता है आपका स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में एक चीज़ और है, द चेंजेस इन द स्टैटिक वेब पेज आर ओनली डन बाय द डेवलपर, पर डायनेमिक वेब पेजेस चेंजेस कर सकते हैं कौन? डेवलपर नहीं, डेवलपर के साथ साथ जो यूज़र हैं वो भी उस पर चेंजेस कर सकते हैं। जब आप तो ही रेलवे की साइट यूज़ कर रहे हो या शॉपिंग की साइट यूज़ कर रहे हो, तो आपने जब आप अभी 100, अब आपने अपने घर में 5 लोगों का रिजर्वेशन करा लिया, तो ये क्या हो गई? 95 हो गई। तो जैसे यूज़र जितने बढ़ते जा रहे हैं, यूज़र उनको यूज़ करते जा रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे यूज़र्स होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट लेस होता जा रहा है, स्टॉक लेस होता जा रहा है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू टाइम आपका डेटा चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? डायनेमिक वेब पेजेस। और स्टैटिक वेब पेजेस जिसमें हम चेंजेस नहीं करते। अगर चेंजेस कुछ भी करना है तो जो इसको वेब पेज को डेवलप किया है, जो डेवलपर है, वही उसमें जाके चेंजेस कर सकता है, यूज़र चेंजेस नहीं कर सकता है। सो दैट देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज दैट डज नॉट चेंज और डायनेमिक वेब पेज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। You can say that the pages may changes with the time of day, the user that access the web page, or the type of the user interaction. Okay, for example, social networking web pages, online shopping portal pages, online reservation portal pages, that is a static or dynamic web pages. वेबसाइट मैंने बता ही दिया है। वेबसाइट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, web pages. Okay, next one is blogs. blog क्या है? काफ़ी इसमें से ब्लॉगर होंगे जो ब्लॉग्स बनाते भी होंगे, ठीक है। देखिए, ब्लॉग्स क्या है? Blogs is a website in which articles are posted regularly and displayed in reverse sequential order is known as blogs. Blogs की एंट्रीज आपकी क्या क्या हो सकती है? टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, लिंक्स हैं, वेब पेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, दैट इज़ अ ब्लॉग्स, ठीक है। इसमें ब्लॉग्स ये सारे हो सकते हैं। ब्लॉग्स का यूज़ करें तो ब्लॉग्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ डिस्कस पर्सनल एक्सपीरियंस। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर या फिर किसी जो भी इंटरेस्टिंग एरिया होता है उस पर वो लोग अपने कमेंट्स लिखते हैं, दैट इज़ अ ब्लॉग्स। ब्लॉग्स पोस्ट आर एन इंडिविजुअल आर्टिकल ऑन द ब्लॉग्स, ओके। द पर्सन हु ऑथर पोस्ट एंड मेंटेन ब्लॉग्स इज नोन एज ब्लॉगर। जो ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, जो पोस्ट करते हैं ब्लॉग्स को,
जो ऑथर होते हैं, जो वो पर्सन जो ऑथर हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं ब्लॉग्स को, वो कहलाते हैं ब्लॉगर। और ब्लॉग्स होता क्या है? ब्लॉग्स एक तरीके की आपका आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स में आपका ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी, लिंक और वेब पेजेस भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले होता है एक रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो वो कहलाता है आपका ब्लॉग। और जो पर्सन इसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑथर जो होते हैं उनको कहते हैं ब्लॉगर। ठीक है। 1999 में हमारे इंटरनेट पे 23 ब्लॉग्स थे। फिर उसके बाद नियरली 2012 में 200 मिलियन ब्लॉग्स हो गए। ठीक है, डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक। और हमारी कुछ ब्लॉगर साइट्स भी हैं, जैसे आपका अगर ब्लॉग्स बनाना है तो ब्लॉगर साइट है www.blogspot.com, www.blogger.com। ये सब क्या है? आपकी ब्लॉग साइट्स है, जहाँ पर आप ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इस समय तो और भी ज़्यादा ब्लॉग साइट आपके ब्लॉग्स हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़ ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है? न्यूज़ ग्रुप आर सिमिलर टू ईमेल। ईमेल की तरीके से ही न्यूज़ ग्रुप है। ठीक है। Except the message which are not posted to someone mailbox, they are posted on bulletin board where they can read and respond to by any member. In the way, discussion take place among several people. The main difference between the news group and a chat room is that there is no instant communication in a news group. As in a chat group, you maintain a instant communication, but in a news group you cannot maintain a instant communication. A numbers of news groups are there on the web. They are organized in the hierarchy of dots and names and read from right to left. Okay. For example, rec.sport.cricket. About general discussion of the cricket world, you go to rec.sports.cricket news group sites. ठीक है। If you want to discussion about poetry, ठीक है, poet या poetry related, then you go all.arts.poetry.comments. That is a poetry related news group sites. Okay. तो न्यूज़ ग्रुप एक तरीके का आपका क्या है, जिसपे हम किसी टॉपिक पर कोई भी एक टॉपिक ले लें, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है, तो उससे जो भी न्यूज़ ग्रुप से अटैच होना चाहिए। जैसे आपको अगर क्रिकेट से रिलेटेड डिस्कशन करना है, क्रिकेट के बारे में कुछ बताना है, अपना सजेशन देना है, डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी है, खुद के भी व्यूज़ देने हैं, तो आप इस न्यूज़ ग्रुप साइट से अटैच हो जाइए। ठीक है। उस पर एक बुलेटिन बोर्ड रहता है, बुलेटिन बोर्ड रहेगा। उस बुलेटिन बोर्ड में आप जाके क्या कर सकते हो? अपनी चीज़ों को लिख सकते हो। तो उससे जितने भी मेंबर अटैच होंगे वो आपकी इस व्यू को देख सकते हैं, और अगर उनमें कुछ सजेशन देना है तो वो भी अपने सजेशन को उस व्यू में लिख सकते हैं। तो दैट इज़ अ बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड ही शेयर होता है। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो दैट इज़ अ न्यूज़ ग्रुप साइट्स। ये सिमिलर होती है ईमेल की तरह, लेकिन ईमेल क्या होता है, उसको मेल बॉक्स में पोस्ट किया जाता है, इसमें पोस्ट नहीं, इसमें बुलेटिन बोर्ड रहता है, वो बुलेटिन बोर्ड में ही आप अपने डेटा को दे सकते हो। ठीक है। थैंक यू क्लास।